channel Passionate Seva. In this video, we will discuss CTET Paper 1 question paper. I will explain full paper with examples and solutions. इस वीडियो में आज हम CTET Paper 1 के Child Development and Pedagogy Section A डिस्कस करेंगे. Hope you like my video. Move to our first question is question number 1. The most critical period of acquisition and development of language is. सबसे ज़्यादा critical period क्या है language development का? कौन सी stage है जहाँ जो critical period होती है language development की? Option number A prenatal stage. Option number 2 early childhood. Option number 3 middle childhood. या option number 4 adolescence. So option number 1. Option number 2 early childhood is the right answer of this question. Early childhood is the most critical period of language development. So move to our next question is question number 2. Which of the following is a stage of moral development proposed by Lawrence Kohlberg? इनमें से ऐसी कौन सी स्टेज है जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्रपोज करी है? ऑप्शन नंबर 1 लिटेंसी स्टेज. ऑप्शन नंबर 2 द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन. ऑप्शन नंबर 3 कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज. या ऑप्शन नंबर 4 इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज. लिटेंसी stage was given by Freud. Concrete operational stage was given by Jean Piaget. Industry versus inferiority stage was given by Lawrence. This is not a stage and this is related to Erik Erikson theory. So the right answer of this question is option number 2. The social contract orientation is a stage which was given by Lawrence Kohlberg. Move to our next question is question number 3. During classroom discussion, a teacher often pays more attention to boys than girls. This is an example of जब classroom में discussion होता है जो teacher जो है वो ज़्यादा attention देती है boys को, girls को कम attention देती है. तो ये एक example है किसका? Option number A gender bias. Option number 2 gender identity. Option number 3 gender relevance. या option number 4 gender constancy. जहाँ boys और girls के बीच में discrimination होता है on the basis of gender. So this is an example of gender bias. So option number 1 is the correct answer of this question. Now move to our next question is question number 4. Which of the following is an effective strategy to reduce children gender stereotyping and gender role conformity? Option number A, discussion about gender bias. Option number 2, emphasizing gender specific roles. Option number 3, gender segregated play groups. या option number 4, gender segregated seating arrangement. So option number 1, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि हम बच्चों को डिस्कशन के थ्रू ही किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को समझे. Now move to our fifth question is, which of the following theorists, while viewing children as active seekers of knowledge, emphasize the influence of social and cultural context on their thinking? Option number 1, John B. Watson. Option number 2, Lev Vygotsky. Option number 3, Jean Piaget. Option number 4, लॉरेंस कोहलबर्ग. तो ऐसे कौन से हमारे थियोरिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा है कि बच्चा एक एक्टिव सीकर होता है अगर बच्चे को आप सोशल और कल्चर एनवायरनमेंट अच्छा देंगे? तो ये जो हमारे इसके एग्जांपल है वो है हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग. लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी थी सोशल कल्चर थ्योरी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो बच्चा है वो अच्छे से सीख सकता है अपने एनवायरनमेंट से. Now move to our next question is question number 6. While working on a jigsaw puzzle, 5-year-old Najma says to herself, where is the blue piece? No, not this one, darker one that would go here and make it this shoe. This kind of talk is referred to by Vygotsky as option number A, private speech. Option number 2, talk aloud. Option number 3, scaffolding. या option number 4, egocentric. So option number A, private speech is the right answer of this question because Vygotsky ने हमेशा private speech की बात करी है कि बच्चा inner way में अपने आप से खुद से बोलता है. Scaffolding is related to the support which was given by the more other knowledgeable people, and egocentric speech was given by Jean Piaget. So the right answer of this question is option number 1, private speech. Move to our next question is question number 7. Given clues to children and offering support as when needed is an example. जब बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत होगी और बच्चे को क्लूज के थ्रू समझाया जाएगा तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है? ऑप्शन नंबर 1 रेनफोर्समेंट. ऑप्शन नंबर 2 कंडीशनिंग. ऑप्शन नंबर 3 मॉडलिंग. या ऑप्शन नंबर 4 स्कैफोल्डिंग. वाइगॉस्की ने हमेशा ही अपनी थ्योरी में स्कैफोल्डिंग की बात करी है कि हम बच्चे को अगर कोई मोर नॉलेजेबल अदर पीपल बच्चे को सपोर्ट करेगा तो उस सपोर्ट को वाइगॉस्की ने कहा है स्कैफोल्डिंग. So option number 4, scaffolding is the right answer of this question.
Question number 8. Which of the following behaviors characterize the concrete operational stage as proposed by Jean Piaget? Concrete operational stage 7 to 11 years में होती है, जहाँ जीन पियाजे ने बताया था कि बच्चा डिफरेंट साइजेस के शेप्स को कंजर्व करता है, कि बच्चा अलग अलग शेप्स को रिकॉग्नाइज करता है और उसके अंदर आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका ये जो एग्जांपल्स हैं वो है ऑप्शन नंबर 1 हाइपोथेटिको डिडक्शन रीजनिंग या प्रोपोर्शनल थॉट। तो हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग बच्चे की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में स्टार्ट होती है जब बच्चा 11 ईयर्स ऑनवर्ड्स होता है, तो ये इसका गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन। ऑप्शन नंबर 3 डिफर्ड इमिटेशन ऑब्जेक्ट परमानेंस। एंड ऑप्शन नंबर 4 मेक बिलीव प्ले एंड इनरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। इनरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट बच्चे की प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन। Move to our next question is question number 9. Which of the following is a Piagetian construct in the context of cognitive development theory of children? पियाजे ने अपनी थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में किस टर्म की बात करी है? ऑप्शन नंबर ए स्कीमास, ऑप्शन नंबर 2 ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑप्शन नंबर 3 कंडीशनिंग या ऑप्शन नंबर 4 रीइंफोर्समेंट। तो पियाजे ने हमेशा स्कीमास की बात करी है कि बच्चे के अंदर प्रीवियस नॉलेज होती है, देन वो उस नॉलेज को ऐड करता है, तो उसी को पियाजे ने क्या कहा है? स्कीमास कहा है। सो द right answer of this question is option number 1 schemas. Move to our 10th question is primary objective of assessment should be. Assessment का primary objective क्या है? Option number 1 assigning rank to students. Option number 2 understanding children, clarity and confusion about related concepts. Option number 3 labeling students as per their score. या option number 4 marking pass or fail in the report card. हमेशा हमने CCE पढ़ा है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में ये कहा गया है असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग में ये कहा गया है कि हम बच्चे को बेसिकली उसके कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं, ना कि हम बच्चों को लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग, मार्किंग, पास और फेल एंड असाइनिंग रैंक इज नॉट रिलेटेड टू असेसमेंट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 कि हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिटी करें और उसकी कन्फ्यूजन को हम दूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स है जो इंटेलिजेंस के बारे में करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली। ऑप्शन नंबर 2 इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट। या ऑप्शन नंबर 4 इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। मल्टी डायमेंशनल की जो थ्योरी है वो हॉवर्ड गार्डनर ने दी है, जहां उन्होंने एक टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है। इंटेलिजेंस को ना तो हम मेजर कर सकते हैं, ना ही बर्थ के टाइम हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 12. Ruhi always think of multiple solutions to a problem, many of which are original solutions. Ruhi is displaying characteristics of n. रूही हमेशा एक प्रॉब्लम्स के मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालती है और उसके सारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ओरिजिनल सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये रूही के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डिनोट करता है? ऑप्शन नंबर 1 क्रिएटिव थिंकर, ऑप्शन नंबर 2 कन्वर्जेंट थिंकर, या ऑप्शन नंबर 3 रिगिड थिंकर, या ऑप्शन नंबर 4 ईगोसेंट्रिक थिंकर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 क्रिएटिव थिंकर। की रूही क्या है? एक क्रिएटिव स्टूडेंट है, जहां वो एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस को सॉल्व करती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग बेसिकली आपका नैरो माइंडेड होता है। रिगिड थिंकर इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक्स। और पियाजे ने ईगो सेंट्रिक थिंकिंग की बात करी है, जब प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या होता है? ईगो सेंट्रिक होता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 क्रिएटिव थिंकर। Move to our next question is question number 13. In a situation of less participation of students belonging to a deprived group in teaching learning process, a teacher should. जो बच्चे डिप्राइव ग्रुप से हैं, जो SC ST OBC से बिलोंग करते हैं बच्चे, उनका कम पार्टिसिपेशन होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो ऐसे टाइम पे टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 आस्क द चिल्ड्रन टू विदड्रॉ फ्रॉम अ स्कूल, कि बच्चों से ये कहना चाहिए कि वो स्कूल को छोड़ दें। सेकेंड, एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एट इज इट। ऑप्शन नंबर 3 लोअर हर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सच स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेशंस टीचर्स को लो रखनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर 4 रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 कि टीचर को अपनी टीचिंग इस तरीके से रिफ्लेक्ट करनी चाहिए जिससे उन बच्चों की भी इन्वॉल्वमेंट हो सके टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में।
Move to our next question is question number 14. In an inclusive classroom, a teacher dash individualized education plans. Option number 1 should not prepare. Option number 2 should occasionally prepare. Option number 3 should actively prepare. Your option number 4 should discourage the preparation of. So the right answer of this question is option number 3 should actively prepare. एक inclusive classroom में जहाँ आपके special students और normal students भी हैं तो टीचर को इस तरीके से individualized education plans बनाने चाहिए जिससे सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन हो सके. Move to our next question is question number 15. The primary characteristics of children with dyslexia include. कि dyslexia के जो students हैं उनको आप कैसे identify कर सकते हो, क्या उनकी primary characteristics है. Option number 1 attention deficient disorder. Option number 2 divergent thinking, fluency in reading. Option number 3 inability to read fluently. या option number 4 engaging in repetitive locomotor action. So right answer of this question is option number 3 inability to read fluently. डिसलेक्सिया क्या है? एक रीडिंग डिसऑर्डर है जहाँ जो बच्चा है वो 2 वर्ड्स को रीड नहीं कर पाता अच्छे से, वो वॉस को सॉ पढ़ता है. जहाँ जो बच्चा है वो वॉस को क्या पढ़ता है? सॉ पढ़ता है. तो डिसलेक्सिया क्या है? बेसिकली एक रीडिंग डिसेबिलिटी है. Move to our next question is question number 16. The concept of inclusive education as advocated in the Right to Education Act 2009 is based on. RTI Act के तहत 6 to 14 years के students को free और compulsory education दी जाती है. तो जो concept है inclusive education वो कैसे advocate करता है RTI Act 2009 से. Option number 1 the behaviorist principles. Option number 2 a sympathetic attitude toward disabled. Option number 3 a right based humanistic approach. Option number 4 mainstream of the disabled by offering them primary vocational education. So right answer of this question is question number 3 कि inclusive education किसकी बात करता है कि normal students plus special students दोनों ही students को एक अच्छी क्लासरूम में educate किया जाए जहाँ उनकी development हो. Move to our next question is question number 17. In the constructivist framework, learning is primarily depend on. Constructivism framework क्या होता है? जीन प्याजे ने ये कहा था कि चाइल्ड जो है कंस्ट्रक्ट करता है अपनी खुद की नॉलेज. तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? कंस्ट्रक्ट ऑन नॉलेज. ऑप्शन नंबर ए based on root memorization. Option number 2 centered around reinforcement. Option number 3 acquired through conditioning. Option number 4 focus on the process of meaning making. So right answer of this question is option number 4 focus on the process of meaning making. कि constructivism में basically बच्चा construct करता है अपनी knowledge को और focus करता है उस concept के meaning making को understand करने में. Number 18 naive theories that children construct about various phenomena. So right answer of this question is option number 4 should be challenged by presenting counter evidence and examples. कि हम naive theories को कैसे हम बता सकते हैं, construct कर सकते हैं कि हम बच्चों को एक counter evidence और examples के थ्रू अगर किसी भी concept को teach करें तो उससे उनका concept की clarity भी होगी और वो अच्छे से उस चीज़ को learn भी कर सकेंगे. Question number 19 child centered pedagogy promotes. Child centered pedagogy फोकस करता है हमेशा ही स्टूडेंट पे और NCF 2005 ने ये कहा है कि हमें कौन सी पेडागोजी अपनानी चाहिए. हमें चाइल्ड सेंट्रेड पेडागोजी अपनानी चाहिए जहां हमारा पूरा फोकस टीचर का हमेशा बच्चे पे ही हो. सो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट करती है एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक. ऑप्शन नंबर 2 गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस. ऑप्शन नंबर 3 रूट मेमोराइजेशन या ऑप्शन नंबर 4 लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 कि हमें बच्चों के एक्सपीरियंसेस को प्राइमेसी देनी चाहिए. Move to our next question is question number 20. Emotions and cognition are dash each other. Option number 1 completely separate from. Option number 2 independent of. Option number 3 interwoven with. या option number 4 not related with. So emotions and cognitions क्या है? Interrelated है एक दूसरे से. So right answer of this question is option number 3 emotions and cognitions are interwoven with each other. Number 21. Which of the following statements about learning is correct from a constructivist perspective? Option number 1 learning is a process of reproduction and recall. Learning is not related with memorization. Learning is a process of rote memorization. Wrong. Option number 3 learning is a conditioning of behaviors by repetitive association. Yeah, option number 4 learning is the process of construction of knowledge by active engagement. So right answer of this question is option number 4 कि learning क्या है? जहाँ बच्चा construct कर सके अपनी knowledge को with active involvement के साथ, जहाँ टीचर और स्टूडेंट का 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस हो.
Question number 22, presenting students with clear examples and non-examples. Option number 1 is an effective way to encourage conceptual change. Option number 2 leads to confusion in the minds of students. Option number 3 cause gaps in their understanding of concepts. Option number 4 focuses on procedural knowledge rather than conceptual understanding. So right answer of this question is option number A. ऑप्शन नंबर ए इज़ एन इफ़ेक्टिव वे टू एनकरेज कंसेप्चुअल चेंज, कि अगर हम कोई भी जो टीचर है अगर वो किसी भी कंसेप्ट को बच्चों को एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगी तो उससे क्या होगा, एक अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज बच्चे के अंदर कंसेप्ट में बैठेगी, जिससे उसका जो कंसेप्ट है उसके ऊपर क्लैरिटी भी होगी, इवन वो उस चीज़ को इफेक्टिवली लर्न कर सकेगा. Question number 23, repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or to gain a reward is an example of option number 1 decrease extrinsic motivation, option number 2 increases intrinsic motivation, option number 3 would encourage children to focus on mastery rather than performance goal, या option number 4 decreases children natural interest and curiosity involved in learning. सो दो टाइप्स के हमारे मोटिवेशन होते हैं. एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन. इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेसिकली जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है, जहाँ बच्चा अपने इंटरेस्ट या अपनी हॉबी से रिलेटेड किसी चीज़ को लर्न करता है. और दूसरा होता है हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बेसिकली मीन्स जैसे आपने बच्चे से कहा कि मैं आपको चॉकलेट दूंगी, तो वो चॉकलेट रिवॉर्ड के लिए वो क्लास में पास करेगा, अच्छे मार्क्स गेन करेगा, तो वो होता है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 डिक्रीजेस चिल्ड्रन नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड इन्वॉल्व इन लर्निंग, कि अगर हम बच्चों को पनिश करेंगे या रिवॉर्ड का सिस्टम देंगे तो उससे बच्चे का क्या होगा, उनका जो नेचुरल इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट के लिए वो डिक्रीज हो जाएगा. Move to our next question is question number 24, which of the following practices promote meaningful learning. वो कौन सी practices हैं जो meaningful learning को promote करती हैं. ऑप्शन नंबर 1 corporal punishment, ऑप्शन नंबर 2 cooperative learning environment, ऑप्शन नंबर 3 CCE, ऑप्शन नंबर 4 constant comparative evaluation. So the right answer of this question is option number 2 and 3 cooperative learning environment and CCE. So ये हमारी meaningful learning को promote करती हैं. Question number 25, how can teachers facilitate understanding of complex concepts in children. जो टीचर है वो किस तरीके से डिफ़िकल्ट कंसेप्ट को टीच कर सकती है स्टूडेंट्स को, किस टीचिंग मैथड का यूज़ करके. ऑप्शन नंबर 1 बाय डिलीवरिंग अ लेक्चर, ऑप्शन नंबर 2 बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, ऑप्शन नंबर 3 बाय रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल, या ऑप्शन नंबर 4 बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन. अगर हमें किसी भी कंसेप्ट को टीच करना है तो उसमें हम एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन मैथड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे टीचर और स्टूडेंट्स का 2-वे कम्युनिकेशन होगा, जहां जो बच्चा है वो इफेक्टिवली किसी भी कंसेप्ट को लर्न कर सकेगा. Question number 26, a primary school teacher can encourage children to become effective problem solvers by. एक जो प्राथमिक शिक्षा की टीचर है वो किस तरीके से बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप कर सकती है. ऑप्शन नंबर 1 ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स फॉर एवरी स्मॉल टास्क, ऑप्शन नंबर 2 एम्फेसाइजिंग ओनली ऑन प्रोसीड्यूरल नॉलेज, ऑप्शन नंबर 3 डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर, या ऑप्शन नंबर 4 एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड देन ब्रेन स्टॉर्म ऑन द सेम. सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जहाँ जो टीचर है वो बेसिकली बच्चों को एनकरेज कर सकती है, जिससे वो बच्चों को ब्रेन स्टॉर्म जैसी एक्टिविटीज़ देगी, जहाँ बच्चा एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता है और मल्टीपल सॉल्यूशंस को वो अटेम्प्ट कर सकता है. Now move to our next question is question number 27. In which of the following periods does physical growth and development occur at a rapid pace? किस पीरियड में या किस स्टेज में बच्चे की सबसे ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है. सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इन्फेंसीहुड एंड अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा बच्चे की फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है. Move to our second last question is question number 28. Which of the following is not a principle of development? हमेशा कभी भी जब नॉट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि नॉट से रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या होता है कि बच्चा एक अच्छा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करता, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कट जाते हैं. सो इसमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का. ऑप्शन नंबर 1 डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, या ऑप्शन नंबर 4 डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट एंड डज नॉट इन्फ्लुएंस इट. डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, मॉडिफिएबल है और इन्फ्लुएंस होती है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के साथ. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 की डेवलपमेंट क्या है, यूनिवर्सल नहीं है, ना ही जो वो इन्फ्लुएंस होती है. डेवलपमेंट हमेशा इन्फ्लुएंस होती है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से, और जितने भी आपकी स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
Move to our next question is question number 29. The primary cause of individual variation is option number 1, the genetic code received by the individual from both parents. Option number 2, the inborn characteristics. Option number 3, the environmental influences. The option number 3, 4, the complex interplay between the heredity and environment. So right answer of this question is option number 4. Move to our last question is question number 30. Which of the following are examples of secondary socializing agency? इसमें से कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो हमारे सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी है? तो पहली जो हमारी सोशलाइजेशन एजेंसी है जहाँ बच्चे की सोशल डेवलपमेंट होती है इनफॉर्मल वे में, वो है हमारा फैमिली। लेकिन इन्होंने इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी क्या है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3, मीडिया एंड स्कूल इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि बच्चे का जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है फैमिली के बाद जहाँ बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है बच्चे की स्कूल और मीडिया के थ्रू।